Hello everyone. Welcome to the Ragni Learning Institute. Today we will learn about simple interest rate and compound interest rate in easy way by using Excel. What is simple interest rate? Interest is calculated only on the original principal, not on the interest earned. It means it is linear interest rate and constant at every year. Its formula is SI is equal to P into R into T. Here P is the principal amount, R is the interest rate and T is the time. सिंपल इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस इंटरेस्ट रेट इज कांस्टेंट एट एवरी ईयर. हम इसे दो तरीकों से अभी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सेल. फॉर एग्जांपल, इन्वेस्ट ₹10,000 एट 10% पर ईयर फॉर 3 years. अब यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 10,000, इंटरेस्ट रेट है 10% और जो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो है 3. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट रेट बाय ईयर वाइज. लेट्स सी. In year 1 we have principal amount 10,000 multiply by 0.10. We will get 1,000 interest rate in year 1. Then in similar way interest rate is 1,000 and then again in year 3 interest rate is 1,000. सिंपल इंटरेस्ट रेट का मतलब ही यही है. इंटरेस्ट रेट जो भी हमारे पास होगा वो लीनियर होगा इन एवरी ईयर. इट मीन्स विच इज सिंपल एंड कांस्टेंट इन ईच ईयर. Now we can see in year 1 we will get 10,000 principal amount plus 1,000. तो year 1 में हमारे पास कितने होंगे? 11,000. Now अब 11,000 जो year 1 के थे प्लस 1,000 year 2 में हमें कितने मिलेंगे? 12,000. इन सिमिलर वे year 2 में हमारे पास कितने थे? 12,000 और ईयर 3 में हमें जो है ना इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा 1,000 अगेन. देन वी हैव टू ऐड एंड वी विल गेट 13,000 ओवरऑल. We are getting 1,000 each year and total is 3,000. And in the last in year 3 we are getting 13,000 of total. So now let's calculate simple interest rate through formula. Now simple interest rate is P into R into T. So this is 10,000. We have interest rate is 0.10 and then 3. So this is 3,000 of interest rate. This is simple interest rate. What we are getting the total amount, we have to add the principal amount which is 10,000 plus 3,000 and through formula we are getting the total 13,000. So we can see the results. Simple interest rate is 3,000 and total amount is 13,000 which we are getting in the end. हम इंटरेस्ट रेट को दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. आइदर यू आर गोइंग थ्रू द फॉर्मूला और ईयर टू ईयर, इट्स अप टू यू. बट एग्जाम्स में इट्स वेरी हार्ड टू गो विद द 20 ईयर्स 30 ईयर्स. अब जहाँ पर टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कहाँ पर 40 ईयर्स हो सकता है, 50 ईयर्स हो सकता है टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट रेट. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो विद द ईयर टू ईयर. सो इट्स बेटर टू गो विद द फॉर्मूला. एंड नेक्स्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट रेट. इट इज़ हाउ मच मनी डिड आई अर्न. मुझे कितने पैसे मिले या कितना इंटरेस्ट रेट मिला. सिंपल इंटरेस्ट रेट में और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में एक ये डिफरेंस है कि सिंपल इंटरेस्ट रेट में हमें 1,000 ईच ईयर एक स्पेसिफिक अमाउंट मिल रहा था. कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में इट विल बी कंपाउंडेड एवरी ईयर. So similar to the simple interest rate, we will calculate compound interest rate through formula and year wise. Let's say interest is calculated on principal plus accumulated interest. यहाँ पर compound interest rate को calculate करने के लिए we need future value, which is future value is equal to present value और principal amount into 1 plus r power n. N is the number of years. Compound interest rate is equal to future value minus principal. For example, 10,000 at 10% per year for 3 years. यहाँ पर principal amount है 10,000, 10% is interest rate and number of years are 3. तो पहले यहाँ पर हम compound interest rate को year wise calculate कर लेते हैं. For example, हमारे पास है principal amount 10,000 multiply by interest rate 10% which is 0.1. तो interest आ जाएगा हमारे पास 1,000 in year 1. टोटल हमारे पास क्या होगा? 10,000 जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट थी प्लस इंटरेस्ट रेट जो था 1,000. तो हमारे पास ईयर 1 में टोटल होगा 11,000.
इन सिमिलर वे इन ईयर 2 व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगा, दिस इज वाई हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा और इसी वजह से हम इसे कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा 11,000, देन मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, दिस इज 1100, तो हमें ईयर 2 में 1100 इंटरेस्ट रेट मिलेगा। टोटल क्या होगा हमारे पास 11,000 प्लस 1100, ओके। In year 3, we have the principal amount of 12,100, which we got in year 2, and the interest rate is 10%. Again, interest rate is same in every year. In year 3, we will get 1,210 rupees, and total is, so in total, or we can say in the end of the year 3, we will get 13,310 rupees. We can see that in year 1, compound interest rate is 1,000, in year 2, it is 1,100, and in year 3, it is 1,210 rupees. The total of it is, we have to add, so compound interest rate is 3,310 rupees for 3 years. We can also calculate the compound interest rate through the formula. So future value is equal to present value into 1 प्लस आर पावर एन। यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी विच इज 13,310। वी हैव प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 10% एंड नंबर ऑफ ईयर्स आर 3। सो यू कैन सी दैट अगर हम फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ रही है वो है 13,310 रुपीज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इट इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रिंसिपल। हमारे पास जो है फ्यूचर वैल्यू है 13,310 रुपीज माइनस प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 10,000 rupees. So compound interest rate is 3,310 rupees. Here we can see that in both ways, either through formula or if we are going through the year wise, we are getting compound interest rate is 3,310 rupees. Compound interest rate increases because we earn interest on previous interest. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो ईच ईयर चेंज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है बिकॉज जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था वो इंक्रीज हो रहा है और चेंज हो रहा है। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट रेट में है, इन सिंपल इंटरेस्ट रेट प्रिंसिपल अमाउंट इज सेम, दिस इज वाई इंटरेस्ट रेट इज सेम इन एवरी ईयर। हाउएवर इन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इट इज कंपाउंडेड इन एवरी ईयर एंड इंक्रीजेस। We can see that if we are going through the formula or going through the year-wise calculation, the results are the same. Formulas are for our ease. If the number increases, for example, हमारे पास जो T है या years हैं वो 70 years हैं, 80 years हैं, 90 years हैं, so it's very difficult to calculate. So it's better to go with the formulas. हमने अब तक जो भी डिस्कस किया वो था एनुअल बेस्ड पर, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो एनुअल हो, वो सेमी एनुअली भी हो सकता है और वो क्वार्टरली भी हो सकता है। जब सेमी एनुअली होगा इंटरेस्ट रेट, लेट से वो आपको प्रॉब्लम में ही पता चल जाएगा दिस इज सेमी एनुअल और एनुअल और क्वार्टर बेस्ड। इफ इंटरेस्ट रेट इज सेमी एनुअल देन लेट से हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट था वो था 10%, देन 10% डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज इट इज सेमी एनुअली 6 मंथ्स के बाद मिलेगा और 6 मंथ्स के बाद मिलेगा, 2 बार मिलेगा एक ईयर में, सो इट्स सेमी एनुअली। तो हमारे पास 5% जो होगा इंटरेस्ट रेट होगा एंड हमारे पास जो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे वो एनुअल बेसिस पर नहीं होंगे, वो भी डिवाइड हो जाएंगे। देन वी हैव जो हमारे पास एनुअल ईयर्स थे वो थे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज दिस इज सेमी एनुअल, तो हमारे पास जो एन हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। इन सिमिलर वे अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट है देन this same 10% will be divided by 4 because quarters हमारे पास 4 होते हैं,
So this is 0.025. इन सिमिलर वे जो नंबर होंगे वो भी हमारा जो है ना चेंज हो जाएगा 3 into 4, बिकॉज अगेन हमारे पास क्वार्टर 4 है तो 12। सिर्फ जो है ना हमारे पास सब कुछ सेम रहेगा, प्रॉब्लम सेम तरीके से जो है ना वो सॉल्व होंगे, बस जो n है और t है उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। Thank you for learning with Ragni Learning Institute. If you want more lectures, then like and subscribe.